Good morning, students. Today in MSc, we are going to learn the chapter number 5, that is Be Humble, यानी विनम्र होना. Value humility. A person can achieve everything by being simple and humble. एक person बहुत सारी चीज़ों को या फिर बहुत सारी चीज़ों को या फिर सब कुछ अचीव कर सकता है by being simple and humble. Children, have you heard the saying, pride goes before a fall? यानी अगर प्राउड फील करता है कोई भी पर्सन तो वो क्या होता है, या फिर एक पर्सन अगर एरोगेंट है, she or he is arrogant, then one day or the other that person will make mistake and that person will fall in a big way. So that means pride goes before a fall. प्राउड फील हम लोग को नहीं करना चाहिए. If you have, then you also know what it means. It means that if we have too much pride, it will eventually hurt us badly. अगर बहुत प्राइड है यानी आप प्राउड फील करते हो, then वो क्या होगा, आपको इवेंचुअली बहुत हर्ट करेगा, and that also very badly. It means that if we are too proud of ourselves, अगर आप बहुत प्राउड फील करते हो अपने बारे में, then we will think of ourselves to be infallible. अगर हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बारे में सोच के और सोचते हैं कि नहीं गिरेंगे, that is wrong. And in our pride and feeling of infallibility, we will commit mistakes and fail in life. हम लोग अपने आप बारे में सोचते हैं कि हम लोग कभी भी गिरेंगे नहीं, फेल नहीं होंगे, प्राउड फील करते हैं इन सब चीज़ों को सोच करके. तो क्या होता है, हम लोग ये सब जब हमारे दिमाग में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमिट करते हैं मिस्टेक्स को और फेल कर जाते हैं अपने लाइफ में. दिस मीन्स दैट वी नीड टू ऑलवेज रिमेन हम्बल. इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हमेशा लाइफ में क्या होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ आवर प्राइड टू रूल अस और हैव मास्टरी ओवर अस. यानी कभी भी प्राइड को या प्राउड को हमारे ऊपर रूल नहीं कर, हमें अपने ऊपर रूल नहीं करने देना चाहिए. वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग बिकॉज everything has been given to us by God the Almighty. हम लोगों को कभी भी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो हमें मिला है किसके द्वारा मिला है, गॉड के द्वारा. यानी जो कुछ भी हमें मिला हुआ है वो किसने दिया है, गॉड. सो वी शुड थैंक फॉर एवरीथिंग विच वी हैव बीन गिवन बाय गॉड. We should always remember that God does not like people who are haughty. So, with me, you will also mark the difficult words also. Okay. So your first difficult words is proud. So you will underline this proud. Okay. So what is the first difficult words? So your first difficult word is proud. We will mark the difficult words also with the chapter. And your second difficult words is haughty. We should always remember that God does not like people who are haughty. haughty का मतलब क्या होता है, जो लोग प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर, एरोगेंट होते हैं, शो करते हैं दैट दे हैव फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी. सुपियोरिटी का फीलिंग होता है उनमें कि उनके जैसा कोई भी नहीं है. तो इस टाइप के पर्सन्स को गॉड भी लाइक नहीं करते हैं. ऑन द अदर हैंड ही showers his unreserved blessings on the people who are humble. यानी जो गॉड हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स किसके ऊपर शावर करते हैं, अनरिजर्व्ड. यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड haughty here and you will underline this word also unreserved यानी ओपन. तो जो गॉड हैं वो अपने सारे ब्लेसिंग्स किसके ऊपर शावर करते हैं, जो पर्सन हम्बल होते हैं. सो योर थर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स इज अनरिजर्व्ड. अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन. तो गॉड किसके ऊपर शावर करते हैं ब्लेसिंग्स,
to unreserved person, those who are humble. Humility means not being proud or arrogant. Next word you will underline, humility. Humility means it is the quality of being humble. So your next word is humility. And humility means not being proud or arrogant. It means modesty in behavior, attitude and spirit. Next we will underline the word modesty. So your word is modesty in behavior, attitude and spirit. It is a quality of being courteous and respectful to others. यानी ये सारी क्वालिटीज क्या है? रेस्पेक्टफुल टू अदर्स, यानी रेस्पेक्ट करना चाहिए दूसरों की, कर्टियस होना चाहिए, isn't it? Okay. Rather than saying me first, humility prompts us to say you first. My friend, यानी हम लोग मी यानी अब खुद को सबसे पहले रखते हैं, उससे अच्छा है कि दूसरों को सबसे पहले रखें. So your next word is which one? Prompts. So you will underline this prompts. Okay, so your fifth number is prompts. And humility you have to underline here also. You will underline here. And your sixth, it is sixth number, your sixth difficult words is humility. इसीलिए सब खुद को पहले ना रख के दूसरों को चांस देना चाहिए. It lets us go more than halfway to meet the needs and demands of others. ये हम लोगों को आधे रास्ते पे ले जा चुका होता है ताकि हम लोग दूसरों के नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल कर सकें. It is the opposite quality of aggressiveness, arrogance, boastfulness and vanity. So the meaning of vanity is admiration of one's own appearance or achievements. यानी खुद के appearance को क्या करना? admire करना. That is known as vanity. So your seventh difficult words is vanity. A humble person is always modest. In other words, he does not think that he is superior to others. जो humble person होते हैं वो अपने आप को क्या रखते हैं? मॉडेस्ट करके रखते हैं, यानी वो अपने आप को सुपीरियर दूसरों से नहीं समझते हैं. ही इज नॉट प्रिटेंटियस, ही लिव्स इन पीस एंड हार्मनी विथ एवरीवन. ये पर्सन कैसा होता है? ये ही इज नॉट प्रिटेंटियस. अब प्रिटेंटियस का मतलब क्या होता है? 8th नंबर यू आर हैविंग द डिफिकल्ट वर्ड्स प्रिटेंटियस. और प्रिटेंटियस का मतलब क्या होता है? यानी दिखाना, इम्प्रेस करना किसी और को जो एक्चुअली में वो पजेस करता ही ना हो. ही लिव्स इन पीस एंड हार्मनी विथ एवरीवन. जो पर्सन हम्बल होते हैं वो दूसरों के साथ पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं. ही इज अवेयर ऑफ द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल पीपल. वो सभी लोगों के डिग्निटी और वर्थ को समझते हैं. He respects God and all his creations. वो गॉड को भी रेस्पेक्ट करते हैं और उनके सभी क्रिएशंस को भी. He acknowledges that God has created him for his purposes and not for his self glorification. वो एक्नॉलेज करता है कि गॉड ने उन्हें किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, ना कि खुद के ग्लोरिफिकेशन के लिए. He understands that the success of all his endeavors ultimately depends on God's favor. ये वो समझते हैं इस चीज को कि जो सक्सेस है या endeavors है वो किस पे डिपेंड करता है? गॉड्स के फेवर पे. You will underline this word pretentious, here vanity and here endeavors. अब endeavors का मतलब क्या होता है? Endeavors का मतलब होता है trying hard to do or achieve something. In other words, he does not regard his possessions or accomplishments as his own but as a gift of God. उनके पास जो कुछ भी होता है वो क्या समझते हैं कि वो किसके द्वारा दिया गया है उन्हें? As a gift of God. He does not allow his great learning, high position or praise of others to go to his head.
वो कभी भी दूसरों के ये लर्निंग को, ही डज नॉट अलाउ हिज ग्रेट लर्निंग या हाई पोजीशन को और प्रेज ऑफ अदर्स टू गो टू हिज हेड. चिल्ड्रेन, it should be amply clear to you that all of us should be humble. यानी आप सभी को समझना चाहिए कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, humble रहना चाहिए. You will underline this word imply. Now what is meaning of imply? Imply means enough or more than enough. Humility is a great virtue. Humility क्या है? एक great virtue है. However, being humble or modest, lacking pretense or not boasting that we are superior to others is considered by many people as timidity or lack of self-confidence. Humble और modest का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें boosting power नहीं होता है, वो superior नहीं होता है वो person, okay? And you will underline here timidity. What do you mean by timidity? Lack of courage or confidence. So your 11th number डिफिकल्ट वर्ड इज टिमिडिटी, जिसका मतलब क्या बताया मैंने? लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस. दिस इज नॉट ट्रू. यानी सब लोग सोचते हैं कि जो पर्सन हम्बल होता है वो सुपीरियर नहीं होता वो पर्सन, और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू. व्हाई? लेट अस स्टडी अहेड. There are many companies around the world which stay ahead of others. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आगे रहते हैं बाकी से. Why are they more successful? वो कैसे more successful रहते हैं? Among other things, these companies are different or more successful than others. अब ये कंपनीज कैसे सक्सेसफुल कैसे होते हैं दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में? Because they all have a level 5 leader who directs his ego away from himself to a larger goal, leading his company to greatness. यानी अपने ईगो को छोड़ करके वो लोग क्या कहते हैं, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि उनके कंपनी को क्या ले जाता है, आगे ले जाता है अपने गोल की तरफ. Although level 5 leaders are extremely professional in their work, they also have extreme personal humility. जो 5 लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं, और उनके पास क्या होता है? पर्सनल ह्यूमिलिटी होता है, यानी विनम्रता होता है उनमें. Although they produce great results, they shun public adulation. We will underline this shun word and adulation. Now we will see what is the meaning of shun. Now what is the meaning of shun? That means ignored. वो पब्लिक और एडुलेशन मीन्स एक्सेसिव एडमायरेशन. वो क्या करते हैं? ऑल्दो दे प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स, दे इग्नोर द पब्लिक एडुलेशन. जो एडमायर करते हैं जो पब्लिक उन्हें, उनको इग्नोर करते हैं. दे आर मॉडेस्ट, दे आर नॉट बूस्टफुल, दे शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम देमसेल्फ एंड कंटिन्यूअली रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स. वो हमेशा क्या करते हैं? जो रिकॉग्नाइज करते हैं जो बाकी लोग उनके कामों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बाय बीइंग हम्बल और शोइंग ह्यूमिलिटी, दिस लीडर्स डू नॉट बिकम मीक और टिमिड. यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड मीक, टिमिड. यानी हम्बल होने के वजह से वो लीडर्स मीक और टिमिड नहीं बनते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीक एंड टिमिड. जो लीडर्स होते हैं वो हम्बल होने की वजह से मीक और टिमिड नहीं बनते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिमिड एंड मीक? टिमिड का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस इजली, एंड मीक मीन्स क्वाइट. ह्यूमिलिटी इज अ सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ह्यूमिलिटी क्या है? उनका स्ट्रेंथ है. ह्यूमिलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग टिमिड और मीक. ह्यूमिलिटी का मतलब नहीं होता है कि टिमिड या मीक बनना. ऑन द कॉन्ट्ररी, इट अनेबल्स अस टू मेंटेन अ सेल्फ एस्टीम और अचीवमेंट्स एंड वर्थ, बट विदाउट एरोगेंस. Interestingly, it has been observed that the more one accomplishes in life, the greater is one's humility.
यानी जितने लोग क्या होते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हम्बल होता है, isn't it? The higher one rises in life, the more humble one should become. जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो आपका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, हम्बल. The more secure one is in one's achievements, the more humble one becomes. It is just like a deep water. The more deep it is, the less noise it makes. यानी क्या होता है, अगर वाटर बहुत ही गहरा है, डीप है रिवर, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कम साउंड्स आते हैं. जैसे कि आप देखा होगा एक कहावत भी है, अध गगरी छलकत जाए. यानी अगर आधा भरा हुआ है आपका जो पॉट होता है तो वो क्या होता है, पानी क्या होता है, हिलता रहता है और नॉइस बहुत करता है. तो यानी आधा भरा होता है इसलिए वो नॉइस करता है. लेकिन अगर वही पॉट पूरा भरा हुआ है तो क्या वो वॉइस उसमें से नॉइस आएगा, नहीं आएगा. तो यानी उसी की तरह है, इट इज जस्ट लाइक ए डीप रिवर, द मोर डीप यानी जितना ही डीप होगा, इट इज द लेस नॉइस इट मेक्स. ये कहावत की तरह ही है, अति गगरी छलकत जाए. इट इज जस्ट लाइक ए मैंगो ट्री. किसकी तरह समझ सकते हैं हम लोग, एक मैंगो ट्री की तरह. The more fruits it bears, the more it stoops. You will underline this word stoops or becomes humble. एक मैंगो ट्री अगर आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं, और जब बहुत सारे फल लगे होते हैं तो वो क्या होता है, वो पेड़ झुक जाता है. यानी हम इसको क्या कहा जा सकता है, इट बिकम्स हम्बल. यानी अगर कोई पर्सन बहुत अपनी लाइफ में अचीव कर चुका है तो वो पर्सन कैसा होता है, हम्बल होता है. यानी एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पेड़ में फल लगे होते हैं बहुत सारे, वो कैसा होता है, झुका हुआ होता है. देन दैट इट इज बेयरिंग अ मोर फ्रूट्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूप्स हियर? स्टूप्स मीनिंग्स बेंड्स वंस हेड और बॉडी फॉरवर्ड. यानी झुका हुआ पर्सन होता है. जितना ही पर्सन आगे अपनी लाइफ में बढ़ता जाता है वो कैसा होता है, वो स्टूप्स होता है. एंड और बिकम हम्बल. सो वी ऑल नीड टू बी हम्बल बिकॉज अ हम्बल पर्सन इज लाइक्ड, एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन. जो पर्सन हम्बल होता है उसे हर कोई एडमायर करता है और रिस्पेक्ट करता है. ऑन द contrary, a proud person is disliked by one and all. जो प्राउड पर्सन होता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है. To hate others or being arrogant is wrong. किसी दूसरी पर्सन को हेट करना या एरोगेंट होना गलत है. We should always remember that although we are all different in many ways, we are also equal in many ways. हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि अगर हम लोग डिफरेंट हैं बहुत सारी चीज़ों में तो हम लोग बराबर भी हैं बहुत सारी चीज़ों में. ऑल ऑफ अस फेस हार्डशिप्स इन लाइफ. सभी लोग हार्डशिप्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, यानी डिफिकल्टीज फेस करते हैं अपने लाइफ में. ऑल ऑफ अस नीड लव इन लाइफ. हर किसी को प्यार चाहिए होता है अपनी लाइफ में. सो we need to be humble and renounce vanity and proud. हम लोगों को कैसा होना चाहिए, humble and renounce vanity and pride. इन सबको क्या करना चाहिए, बाहर करना चाहिए अपने अंदर से. Now we will read one story. Once upon a time there lived a stag in a forest. You will underline this word stag. What is the meaning of stag? Stag means a male deer. ये किसके बारे में है स्टोरी, एक मेल डियर जो कि कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में. He grazed on the green grass growing in the forest. He had many friends. He played with them. One evening, he was drinking water from the pond located in middle of the forest. वो क्या कर रहा था, एक दिन इवनिंग में वाटर ड्रिंक कर रहा था वो पास के फॉरेस्ट में किसी पास वाले पॉन्ड में. Suddenly, he saw his reflection in the water. वो क्या देखा अपने, सडनली ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. यानी अचानक से वो क्या देखा, रिफ्लेक्शन अपना वाटर में. ही कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ.
वो सोच नहीं पाया, बिलीव नहीं कर पाया कि उसने क्या देखा. He exclaimed, "What a beautiful pair of horns I have!" यानी उसने exclaimed किया कि कितने beautiful pair of horns हैं he was having. How come I failed to notice their beauty so far? वो कैसे अपनी क्या बोलते ब्यूटी को फेल किया नोटिस करने से. Anyway, better late than never. I have beautiful horns. I have beautiful horns, which I am proud of. No one in the forest has such beautiful horns. I have beautiful horns, which I am proud of. No one in the forest has such beautiful horns. But my legs are awful. यानी legs क्या है उसका? Awful. So you will underline this word awful. Awful meaning very bad or unpleasant. यानी उसके legs क्या थे? Unpleasant थे, यानी बहुत ही खराब थे. They are so long and thin. क्या है उसका leg कैसा था? Long and thin. They are not beautiful at all. उसका जो leg था वो beautiful नहीं था. However, I cannot help it. God has given me such legs and I will have to bear with them. यानी God ने मुझे ऐसे legs दिए हैं, so I have to bear with them. However, seldom will anyone take notice of these legs. अब seldom का मतलब क्या होता है? You will underline this word seldom. So what is the meaning of seldom? Seldom means not often. Will anyone take notice of this legs? यानी कोई भी notice legs को नहीं करेगा. They will be lost in appreciating my horns. वो क्या हो जाएंगे? मेरे horns को appreciate करने में भूल जाएंगे मेरे legs को. They will say that I am the most beautiful animal in the entire forest. यानी बहुत ही beautiful animal है हम पूरे forest में. From that day onwards, the stag's attitude towards the rest of the animals changed drastically. उस दिन से stag का जो attitude था दूसरे animals के प्रति वो क्या हो गया? Change हो गया. He became proud and arrogant. जो stag था वो क्या बन गया उस दिन से? Proud and arrogant. His friends tried to make him understand that being proud was not good. उसके जो फ्रेंड्स थे उसे समझाया उसे कि प्राउड होना अच्छी बात नहीं है. इट वुड लीड टू हिज डाउनफॉल वन डे. जो कि उसके डाउनफॉल वो फेल हो जाएगा एक दिन. बट द प्राउड स्टैग डिड नॉट लिसन टू एनीवन. स्टैग किसी का भी नहीं सुना. स्लोली ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम. धीरे धीरे स्टैग के सारे फ्रेंड्स उसे छोड़ दिए. One day he was roaming in the forest in search of food. एक दिन वो फॉरेस्ट में अपने फूड को सर्च कर रहा था और रोम कर रहा था इधर से उधर. In his quest he went far away from his home. वो क्या अपने घर से बहुत दूर चला गया. In search of food. He found green grass and started grazing. उसे ग्रीन ग्रास दिख गया और वो क्या करने लगा? ग्रेज करने लगा. As he was grazing, the lion who had just came out of his cave in search of prey saw him. जैसे ही वो जो स्टैग था वो ग्रेज कर रहा था ग्रास को, वैसे एक लायन अपने केव से बाहर निकला इन सर्च ऑफ प्रे एंड ही सॉ दिस स्टैग. He started moving towards this stag. जो लायन था वो किसकी तरफ मूव करने लगा? स्टैग की तरफ. When the stag saw the lion, he started running away. जैसे स्टैग ने लायन को देखा वो क्या करने लगा? भागने लगा. The lion started chasing him. Slowly, the gap between the stag and the lion started getting less. जब लायन उसे चेस कर रहा था तो जो गैप था दोनों के बीच में वो क्या हो गया? कम होता चला गया. Suddenly, the horns of the stag got stuck in the branches of a small tree.
अचानक से जो स्टैग का हॉर्न्स था वो कहाँ स्टक हो गया, ब्रांचेस ऑफ ए स्मॉल ट्री, जो ब्रांच थे ट्री के उसमें जाके वो क्या हो गया, फंस गया। क्या फंस गया, स्टैग के हॉर्न्स। ही डिड हिज बेस्ट टू फ्री देम फ्रॉम द ब्रांचेस, वो अपना पूरा कोशिश किया ताकि वो ब्रांचेस से अपने हॉर्न्स को फ्री कर सकें। बट हिज एफर्ट्स वेर इन वेन, ही रियलाइज दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, उसे रियलाइज हुआ कि वो अब डाई कर जाएगा यानी मर जाएगा। ही थॉट आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हॉर्न्स बट दे आर गोइंग टू बी द कॉज ऑफ माई डेथ, यानी वो बहुत ही प्राउड फील करता था अपने हॉर्न्स की वजह से, और यही हॉर्न्स उसके क्या बन रहे हैं, रीजंस बन रहे हैं उसके डेथ का। ऑन द अदर हैंड आई वॉज सो अनहैप्पी विथ माई लॉन्ग थिन लेग्स, और वो क्या था, हॉर्न्स जो उसमें हॉर्न्स की वजह से वो अपने आप पे प्राउड फील करता था, और ये खुश नहीं रहता था कि उसके क्या है, लॉन्ग एंड थिन लेग्स हैं। आई डिड नॉट लाइक देम एट ऑल बट इट इज दिस लेग्स विच कैन सेव मी फ्रॉम द लायन, लेकिन यही वो लेग्स हैं जो कि मुझे किससे बचा सकता है, लायन से। बट नाउ द लायन हैड रीच द स्टैग, लेकिन अब कहाँ पे रीच कर गया है लायन, स्टैग के पास, स्टैग के पास। ही पाउंस्ड ऑन हिम एंड किल्ड हिम, पाउंस्ड करना मतलब जंप करना या अटैक करना किसी पे या किसी चीज पे। सो यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड पाउंस्ड। पाउंस्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, स्प्रिंग फॉरवर्ड सडनली सो एज टू अटैक और सीज समवन और समथिंग। किसको कर दिया, किल्ड हिम यानी स्टैग को मार दिया। ही एंजॉयड ईटिंग द डिलीशियस फ्लेश ऑफ द स्टैग, और लायन ने एंजॉय किया किसका ईट करने के लिए, फ्लैश, किसके फ्लैश को, स्टैग के फ्लैश को। सो चिल्ड्रन नेवर बी प्राउड ऑफ एनीथिंग, आपके पास जो कुछ भी है वो किसका दिया हुआ है, भगवान का यानी गॉड का। तो आपको क्या करना है, उन्हें हमेशा थैंक्स करना चाहिए, और हमें कैसा होना चाहिए, हम्बल, विनम्र होना चाहिए। तो कभी भी किसी भी चीज को, अपनी क्वालिटीज को या स्किल को लेकर के कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक पर एक पर्सन पहुंचता है उतना ही क्या होता है, वो झुका हुआ होता है यानी हम्बल होता है वो पर्सन। जिस तरीके से एक लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी तरीके से एक पर्सन में अगर बहुत सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, या ये कोई एक हाई पोस्ट पे पहुंच जाता है तो वो कैसा होता है, हम्बल होता है, विनम्र होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्ध गगरी छलकत जाए, यानी आधा भरा हुआ घड़ा या पॉट क्या होता है, बहुत शोर करता है, आवाज करता है, नॉइस होता है उसमें। लेकिन वही अगर पॉट भरा हुआ है तो वो नॉइस नहीं करता। यानी अगर किसी एक पर्सन के पास बहुत सारा नॉलेज है तो वो क्या करते हैं, उसको शो ऑफ नहीं करते, वो किसी दूसरे पर्सन को नीचा नहीं दिखाता है, isn't it? So इसलिए हम लोगों को लाइफ में कैसे होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। कभी भी किसी चीज को लेकर के एरोगेंट नहीं होना चाहिए और प्राउड फील नहीं करना चाहिए। Now what you will do, you will write this difficult words in your class or copy and you will read this chapter thoroughly. That's all for today. Thank you.